Hello Sagittarius people, welcome to my reading. I'll be doing your reading based on love, lovers, relationship, love goals, love life. So the basic theme of this reading will be love and relationship. So I'll be using 4 multiple decks. All those decks will be of oracle cards, 4 oracle decks. Lovers oracle deck, Romance Angels Oracle deck for the guidance, Fairies Oracle deck for the guidance, and True Emotions Oracle deck. So you can watch it as a sun sign, as a moon sign, as a rising sign, as an ascendant sign or rising sign. It's same thing. Both the signs are same, ascendant sign or rising sign, and Venus sign. So let's start with the shuffling. This reading is for Sagittarius people. Universe, please guide the Sagittarius people and let them know what they need to know to improve their love life. Please guide the Sagittarius people and their partner. Universe, please guide the Sagittarius people and their partners. Please let them know what they need to know to enhance or better their love life. What changes do they need to bring in their love life? Okay. So you can watch it as a Sagittarius sun sign, Sagittarius moon sign, Sagittarius rising sign, and Sagittarius Venus sign. All these signs will validate. And one more important thing, since it's a reading for you Sagittarius and your partner, let me explain it to you. This side will be of you, either this side will be of you and this side will be of your partner Sagittarius, or the energy could flip. This side could be your partner's side and this side could be your side, Sagittarius. So take it as it resonates. Match with the situation of your life, of your love life, and take it as it resonates with you. Just choose the side as you wish to choose. जो सही लगता है, जो रेजोनेट करता है आपके साथ, आपके लव लाइफ के स्टोरी के साथ, वो साइड चूज कीजिए. सिंपल थिंग इज जस्ट फ्लिप द एनर्जीज. जो आपको लगे आपका साइड है वो आप लीजिए, आप रखिए. जो आपके पार्टनर के साथ हो रहा है वो पार्टनर को पार्टनर के लिए रहेगा वो साइड. सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू. Okay, so let's start with your reading, Sagittarius. Okay, 3 sections मैंने बांटा है, कार्ड को डिवाइड किया है. फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस. फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस. फीलिंग्स में देखते हैं क्या आया है. वेट. Wait, don't rush into it, allow nature to take its course. क्या आप कुछ चीज़ में हड़बड़ी कर रहे हैं क्या? कोई भी लव लाइफ रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में या सोच में कुछ कहीं हड़बड़ी कर रहे हैं क्या? या फिर किसी को प्रपोज करने में हड़बड़ी क्या कर रहे हैं क्या? तो थोड़ा सा सोच लीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिए. शायद आपके मन में यही चल रहा होगा कि मुझे रुकना चाहिए, क्योंकि ये फीलिंग्स का कार्ड है. तो आपके मन में शायद यही चल रहा होगा कि मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, रुक के चलना चाहिए. मैं इतना हड़बड़ नहीं करूँगी या करूँगा. मुझे थोड़ा वक्त लेके समझना चाहिए इस चीज़ को या फिर इस इंसान को. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट द एंजल्स हैव टू से. द एंजल्स गाइडेंस इज इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. दिस इज़ व्हाट द एंजल्स हैव टू से. एंड सी, सर्टेनली दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन. आप मन ही मन में सोच रहे शायद मुझे वेट करना चाहिए. ये आपकी फीलिंग्स में हो सकता है, सिंस इट्स अ फीलिंग कार्ड. सो द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल इज इट इज सेफ फॉर यू टू लव. डरिए मत. डोंट बी इनसिक्योर, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ लविंग समवन.
Angels are asking you, they are guiding you and conveying their messages to you. They are telling you it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. And what is that highest energy of all? It is the energy of love. Love is the energy. It is the highest energy. So, आपके वेटिंग का आंसर आपको मिल गया. Angels have already answered. It is safe for you to love. आपको green signal मिल चुका. Okay, so moving on to the next card, the card of intentions. New beginning. New beginning. A new adventure awaits you. Embrace it and live your dreams passionately. ये जो आप सोच रहे थे ना, आपके फीलिंग्स में था मैं रुकूं, हड़बड़ मत नहीं करूं. एंजल्स ने भी कह दिया कि नो, इट्स सेफ फॉर यू टू लव. आगे बढ़िए. ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी. सो देखिए, आपके इंटेंशन में न्यू बिगनिंग की चाहत है. आप ऐसा इंटेंट करते हैं. यू इंटेंट टू स्टार्ट योर लव लाइफ. You intend to start your love life. So, it's a new beginning, a new adventure awaits you. Embrace it and live your dreams passionately. See, so related these cards are. The guidance from the angel side is worth waiting for. आपका वेट पीरियड अब ख़त्म हो चुका. बहुत सोच लिए आप, बहुत सवाल जवाब कर लिए अपने साथ. सो आपका वेटिंग पीरियड अब ख़त्म हो रहा है. वर्थ वेटिंग फॉर. डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ. कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुल रिलेशंस हैव फॉर्म्ड विद इन दीज कार्ड्स, हाउ रिलेटेबल इट इज़. सो ट्रस्ट यूनिवर्स. टेक अ लीप ऑफ फेथ. Worth waiting for. Your divine timing has started. It is at work. The universe is working in your favor. In your love life. So, आपका वेटिंग पीरियड ओवर हो चुका. आप आगे बढ़ सकते हैं. एंजल से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है आपको. न्यू बिगनिंग की शुरुआत कीजिए. आपके इंटेंशन में भी है न्यू बिगनिंग. सो एंजल्स ने भी इसको फिर से दोबारा बोला कि वर्थ वेटिंग फॉर. वेट पीरियड ख़त्म हो चुका. डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ. आपने जो वेट किया वो सही था, तब वही ज़रूरी था, लेकिन अब आगे बढ़ना ज़रूरी है. न्यू बिगिनिंग की शुरुआत कीजिए. Let's see the action card for you Sagittarius people. Playfulness. This is the action card. Playfulness. It says playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Action के लिए ये बोला जा रहा है. ये आपके एक्शन के लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर के एक्शन के लिए भी हो सकता है. सो हमेशा सीरियस रहना लव में कतई उचित नहीं है. इज़न्ट इट? कतई ये उचित नहीं है. प्लेफुलनेस भी ज़रूरी है, लाइट हार्टेडनेस भी ज़रूरी है. तभी जाके बैलेंस बरकरार रहता है लव लाइफ में. सो आपके एक्शन में प्लेफुलनेस की ज़रूरत है. लाइट हार्टेड एनर्जी, लाइट हार्टेडनेस की ज़रूरत है. लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी. एक साथ हंसिए, एक साथ घूमने चाहिए, हंसी मजाक कीजिए एक दूसरे के साथ. थीम पार्क्स में जाइए, घूमिए फिरिए, आउटिंग में जाइए, कॉमेडी सिनेमा देखिए. घर पे हो, बाहर हो, सोफे पे बैठ के पॉपकॉर्न खाते खाते सिनेमा देखिए, कॉमेडी सिनेमा. बिकॉज लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी. वी ऑल नो लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. Don't we? We certainly do know. Have some fun together. कुछ मस्ती मजाक कीजिए एक दूसरे के साथ. And remember, love is the greatest healer. Well, angels' guidance, getting to know each other.
As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. ये नई शुरुआत की बात की गई है इंटेंशन के कार्ड में। तो गेटिंग टू नो ईच अदर एक्शन में बोला जा रहा है। इसका मतलब न्यू बिगिनिंग शुरू हो रहा है आपका। आप एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे धीरे धीरे, या जान पहचान शुरू किए हैं। कोई सैजिटेरियस शायद जान पहचान शुरू किए हैं, एक दूसरे को धीरे धीरे जानेंगे। अपने जो इनर मोस्ट सेल्व्स है, अपना जो इनर मोस्ट सेल्फ हम लोग का अंदर का जो होता है, जो डर, इनसिक्योरिटीज़ जितने भी हो, सब ओपन अप कीजिए अपने पार्टनर के पास। तभी जाके आपका लव डीपन होगा, बॉन्ड डीप होगा। ओनली देन योर बॉन्ड डीपन्स। सो ओपन अप माय डियर, ओपन अप टू योर लव पार्टनर। सो गेट टू नो ईच अदर बेटर। थोड़ा और जानिए वो क्या पसंद करती है, क्या पसंद करता है, क्या अच्छा लगता है उसको। Isn't it? That's how we start our new beginning in our love life, right? In our relationship or in a marriage. So get to know each other. This is what angels are saying, guiding you. Get to know each other. As you reveal your innermost selves, दिल से मिलिए एक दूसरे के साथ। मन में जो भी है सब शेयर कीजिए। मन में, अपने मन में कुछ दबा के मत रखिए, तब हाफ हार्टेडली होगा। आपका बॉन्ड डीप कभी भी नहीं हो सकता है। फिर जो मन में है, अपने मन में, वो अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग, एंड शेयरिंग certainly deepens your bond, deepens your love life. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Okay, so moving on to this side. Let's see what's in store for you, Sagittarius people. Secret admirer. Who is that? Secret admirer. Sagittarius, ये आपके लिए भी हो सकता है। आप किसी को सीक्रेटली एडमायर करते हैं, या फिर आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि आपके पार्टनर या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपको सीक्रेटली एडमायर करता हो या करती हो। कुछ भी हो सकता है। So previously I said, just flip the energies, relate to what resonates with you. Take it as it resonates with you. So secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. कोई मन ही मन में आपको बहुत चाहता है या चाहती है, लेकिन बयान नहीं कर रही है या कर रहा है। Because he or she is a secret admirer. ये आप भी हो सकते हैं, या फिर आपके मन में जो इंसान है, या फिर नहीं भी है तो कोई और होगा जो अभी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, वो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। Someone has deeper feelings for you than they are letting on. वो कह नहीं रहा है, वो कह नहीं रही है, लेकिन उसके मन में आपके लिए प्यार है, सीक्रेटली एडमायर कर रहा है आपको। Let's see what the angel has to say. Flirt, extend your light-hearted energy to others. Angels का कहना है फ्लर्ट का मतलब ये होता है कि being light, being easy, हमेशा सीरियस होना ही लव नहीं होता है। हमेशा प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे रहना ही लव नहीं होता है। इमोशंस का भी ज़रूरत होता है, प्रैक्टिकलिटी का भी ज़रूरत होता है, तभी बैलेंस मेंटेन किया जाता है या कर सकते हैं। नहीं तो अप डाउन होगा। बैलेंस के लिए ग्राउंडेडनेस भी ज़रूरी है, स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकलिटी भी ज़रूरी है, और लाइट हार्टेड इमोशंस भी ज़रूरी है। सो एंजल्स आर गाइडिंग यू टू फ्लर्ट विथ योर पार्टनर, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू योर पार्टनर। देखिए, अभी आया था प्लेफुलनेस के बारे में, गेटिंग टू नो ईच अदर, हैव सम फन इन योर लाइफ। इस कार्ड में कहा गया था हैव सम फन विथ ईच अदर, बिकॉज लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। सो दैट्स वाई यहाँ पे भी आया। सो इट इज़ वेरी मच रिलेटेड। यहाँ पे भी आया एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू योर पार्टनर। थोड़ा फ्लर्टिशियस, एक दूसरे के साथ थोड़ा फ्लर्ट कीजिए, थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी। फ्लर्ट मतलब क्या? लाइट हार्टेड इमोशंस शेयर कीजिए,
हंसी मजाक कीजिए, मस्ती मजाक कीजिए. दिस इज़ वॉट फ्लर्ट मीन्स. लेकिन डीप बॉन्ड में डेफिनेटली लव होना चाहिए इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म. Okay, so this was about your feelings or your partner's feelings. Let me see about the intentions. Romance. Intention says romance. Cupid's arrow strikes. Cupid's arrow strikes. It's a card of romance, as you can see. Romance, Cupid arrow strikes. Let me see what angel has to say. Express your love. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. जो secret admiration आप रख रहे हैं उसे जाके express कीजिए अपने पार्टनर को. सीक्रेट का फेस ख़त्म हो चुका, अब जाके एक्सप्रेस कर दीजिए, नहीं तो खो बैठेंगे आप शायद अपने लव को या लवर को या जिसको पसंद करते हैं. सो टाइम फॉर यू टू एक्सप्रेस माई लव माई डियर. दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स. एक्सप्रेस योर लव. गो अहेड एंड मेक दैट रोमांटिक जेस्चर. सी, यहाँ पे भी रोमांस की बात की गई है, यहाँ पे भी रोमांस की बात की गई है. कैन यू सी how the relation forms, how the universe guides you? So, make a romantic move. Go ahead and make the romantic gesture. Express your love. Secretly अब admire करना बंद कर दीजिए. अब सामने जाके बोल के admire कीजिए कि मैं तुम्हें चाहता हूँ या मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ. बता दीजिए. ओके, आई एम सो हैप्पी फॉर यू Sagittarius people. Okay, the action card says twin flames. Twin flames, your passion ignites. Twin flames. ट्विन फ्लेम्स पता है क्या होता है? आप में से बहुत जनों को शायद पता नहीं होगा कि ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली क्या होते हैं. ट्विन फ्लेम्स होता है एक ही सोल का दो हिस्सा. एक ही सोल का, एक ही आत्मा का दो हिस्सा, इसीलिए ट्विन कहा गया है. ट्विन फ्लेम्स इसी को बोलते हैं या फिर ट्विन सोल्स भी बोलते हैं. यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको ट्विन सोल्स के बारे में, ट्विन सोल्स के जर्नी के बारे में. गूगल में आप आर्टिकल सर्च करते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है. सो जानिए और बेहतर तरीके से कि ट्विन फ्लेम्स क्या होता है. कि बहुत सारे साइंस में ट्विन फ्लेम्स आया है. बिकॉज नाउ इज़ द असेंडिंग टाइम. हम लोग सभी का वाइब्रेशन बढ़ रहा है. वी आर स्पिरिचुअली ग्रोइंग. सो स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के बाद, ग्रो करने के बाद तभी जाके ट्विन फ्लेम का स्टेज आता है. इसीलिए मैक्सिमम साइंस आर गेटिंग ट्विन फ्लेम साइंस. कॉलिंग इन योर सोलमेट. सी, यहाँ पे भी आया है सोलमेट. सोलमेट भी बहुत डीपनिंग बॉन्ड होता है, बहुत डीप बॉन्ड होता है सोलमेट का बॉन्ड, जो कि हर किसी से अलग होता है. सोलमेट का बॉन्ड कुछ खास होता है, स्पेशल होता है. आपको पता चल जाता है कि ही और शी इज़ माई सोलमेट. सोलमेट नाम तो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा. इट्स अ वेरी कॉमन टर्म. सो कॉलिंग इन योर सोलमेट. योर प्रेयर्स, affirmations and visualizations help bring you together. So secretly आप जिसको admire कर रहे हैं, क्या पता वो आपका twin flame भी हो सकता है, आपका soulmate भी हो सकता है, क्योंकि action के कार्ड में दोनों आया है. twin flame भी आया है, soulmate भी आया है. So it is highly possible that he or she is your twin flame or he or she is your soulmate. So प्रेयर से, एफर्मेशन से उसके पास जाइए, एफर्म कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए. सिर्फ सीक्रेटली एडमायर और मत कीजिए. पास जाइए, जाके बोलिए, अपने लव को एक्सप्रेस कीजिए, अपने रोमांस को एक्सप्रेस कीजिए, जैसा इस कार्ड में निकला है. ओनली देन यू कैन मैनिफेस्ट. पॉजिटिवली एफर्म कीजिए, प्रेयर्स कीजिए,
तभी जाके इट विल हेल्प यू टू गेट टुगेदर, टू कम टुगेदर, यू नो। विजुअलाइज कीजिए, मन ही मन में सोचिए कि आप लोग एक साथ हैं, आप लोग एक दूसरे से मिले हैं। विजुअलाइज कीजिए, ऐसे ही मैनिफेस्टेशन होता है। मेरे वीडियो में, यूट्यूब चैनल में मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियो है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर वीडियो है, वो भी रेफ़र कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव एफर्मेशन होता है, व्हाट इज़ पॉजिटिव एफर्मेशन, कैसे किया जाता है, व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, कैसे किया जाता है। ड्रीम्स को रियलिटी में लाना मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो मेरे वीडियोस को जाके रेफ़र कीजिए, आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज़ पॉजिटिव एफर्मेशन, हाउ टू अफर्म पॉजिटिवली टू द यूनिवर्स टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, हाउ टू मैनिफेस्ट टू द यूनिवर्स, व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, हाउ टू मैनिफेस्ट, ये सब कुछ आइडियाज़ मिल जाएगा। प्लीज़ रेफ़र टू माई वीडियोज़ दैट आई हैव पोस्टेड इन माई यूट्यूब चैनल। आपको वहाँ से बहुत ज्ञान मिल जाएगा। So, thank you so much, Sagittarius people. Wish you all the very best for your love life, and I'm really happy for all these messages that you have got, but the last message is still there. It's still due. This will be the card of True Emotions Oracle deck. This is the card of True Emotions Oracle deck. I'll be using this card as an overall summation, which is also a guidance and universal message, angel's message to you. Always take it as a positive guidance. Empower yourself and empower your partner as well. Universe, please guide the Sagittarius people. Please guide the Sagittarius zodiac signs and their respective partners. Please guide the Sagittarius zodiac signs and their respective partners. Universe, please tell them what they need to know, what help do they need to enhance their love life, to better their love life. Please guide them. Please let them know what they need to know. Okay. So I'll pick up one card from this deck. Let me see what the fairies' guidance is. Okay. Universe, please guide the Sagittarius people and their partner. Fairies, angels, please guide the Sagittarius souls and their partners. Please let them know what they need to know, what they need to do to enhance their love life, to better their love life. Please guide them. Please let them know what they need to know. Please let them know, universe, what they need to know. Angels, fairies, please let them know what they need to know for all Sagittarius people and their partners. Okay, I'm done with shuffling, and here is your card. Okay, True Emotion card says, leaving you hurts me too, but it was needed. कभी कभी होता है, ज़रूरी होता है दूर रहना। हम लोग रह नहीं पाते हैं एक दूसरे से दूर, रह नहीं पाते हैं एक दूसरे से दूर। बहुत तकलीफ़दायक होता है वो फेज़, लेकिन दूर रहना तब ज़रूरी था, चाहे किसी भी वजह से हो। दूर रहना तब ज़रूरी था, इसीलिए शायद आप दूर रहे हैं या रहने की सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी सजिटेरियस की लाइफ में, या ऐसा हो चुका है ऑलरेडी किसी सजिटेरियस की लाइफ में। सो लिविंग यू हर्ट्स मी टू, बट इट वॉज नीडेड।
ज़रूरी था दूर रहना। प्यार को बढ़ाने के लिए, कभी कभी और डीप करने के लिए बॉन्ड को कभी कभी ज़रूरी होता है दूरियां, यू नो। और बेहतर जान पाते हैं अपने आप को, आप अपने फीलिंग्स को, आपके पार्टनर के प्रति जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, उसे और डीपली जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ भी? तो यही कहा जा रहा है, लिविंग यू हर्ट्स मी टू। बहुत दर्दनाक था, पेनफुल था, इट डिड हर्ट मी, बट इट वॉज नीडेड, ज़रूरी था। प्यार को बढ़ाने के लिए कभी कभी ज़रूरी होता है। लेट मी सी व्हाट फेरीज हैव टू से। लाइफ एनर्जी, the happy fairy of sunshine bring lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. ये जो दूरियां आपने किए हैं, आप रखे थे, मेंटेन किए थे, हालांकि आपको दर्द हुआ, पेन हुआ, दुख हुआ, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप दूर थे। वजह आपको ही पता होगा बेटर, बिकॉज इट्स योर लव लाइफ, यू शुड बी नोइंग इट बेटर देन मी। सो रीजन यू शुड बी नोइंग। तो फेरीज की तरफ से यही मैसेज है कि द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शैडोज। जो शैडोज का फेस था, जिस वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर रह रहे थे, जिस वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर रह रहे थे, तो अभी वो फेस खत्म हो चुका। वो पास्ट में उसको रहने दीजिए, वो खत्म हो चुका। इट्स गॉन, दैट एरा इज गॉन। अब इसको हील कीजिए, हीलिंग स्टार्ट कीजिए, खुद को हील कीजिए, अपने पार्टनर को हील करने में मदद कीजिए। दिस इज व्हाट द फेरी इज सेइंग। लाइफ एनर्जी को और बूस्ट अप कीजिए। ये जो हर्ट से आप गुजरे हैं, ऑब्वियसली वीक लगा आपको ना। यू कैन नॉट स्टे विदाउट हिम और यू कैन नॉट स्टे विदाउट हर। इट डिड हर्ट यू, लिविंग यू हर्ट्स मी टू, बट इट वॉज नीडेड, इट वॉज नीडेड। कोई तो वजह था, कोई तो वजह होगा जिसके लिए आप ये स्टेप लेने में मजबूर हो गए। तो नाउ दैट फेज इज ओवर, नाउ लिव योर लाइफ विथ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वाइवेशियस एनर्जी, एंड whatever might be the shadows that you have come across, that you have faced in your past, उस पर मिट्टी डालिए, उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़िए। अपने लव लाइफ को ब्लूम होने दीजिए और अच्छी तरीके से प्रॉस्पर होने दीजिए, तभी जाके यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लव लाइफ, बोथ यू एंड योर पार्टनर। So this was all about your reading, Sagittarius people. Once again, I am telling you that this could be your side, Sagittarius. This could be your partner's side, or vice versa. This could be your side, Sagittarius. This could be your partner's side. So wish you all the very best. You can watch it as a sun sign, as a moon sign, as a rising sign, or as a Venus sign, since it's a love reading and Venus is the goddess of love. So you can watch it as a Venus sign also. So see you in my next reading. Wish you all the very best for your love life ahead. Take care and goodbye. See you in my next reading.